Good morning to all of you. Class 7th, Subject Social Science, Chapter 5, Water. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 35 निकालेंगे। वहाँ से हम पढ़ेंगे टाइड्स के बारे में, यानी कि ज्वार भाटा के बारे में। The rhythmic rise and fall of ocean's water twice in a day is called a tide. It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. It is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore. तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक का आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides. The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide. तो सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। During the full moon and new moon days, the sun, the moon and the earth are in the same line and the tides are highest. These tides are called spring tides. But when the moon is in its first and last quarter, the ocean waters get drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides. These tides are called neap tides. तो पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वृष्ट ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थार्थ में होता है तो चांद एवं सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन. They raise the water level close to the shores. This helps the ships to arrive at the harbor more easily. The high tides also help in fishing. Many more fish come closer to the shore during the high tide. This enables fishermen to get a plentiful catch. The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. तो उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर
ज्वार बाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग होता है। उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद हम ओशन करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। महासागरीय धाराएं। Ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite directions. तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। The ocean currents may be warm or cold. The warm ocean currents originate near the equator and move towards the poles. तो महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। The cold currents carry water from polar or higher latitudes to tropical or lower latitudes. The Labrador Ocean's current is cold current, while the Gulf Stream is a warm current. The ocean currents influence the temperature conditions of the area. Warm currents brings about warm temperature over land surface. The areas where the warm and cold currents meet provides the best fishing grounds of the world. Seas around Japan and the eastern coast of North America are such examples. The areas where a warm and cold current meets also experience foggy weather, making it difficult for navigation. तो गर्म महासागरीय धाराएं भूमंडल रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांकों से उच्च कटिबंधीय या निम्न अक्षांकों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर महासागर धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। तो वो कौन सी होती हैं? शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यसन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। तो इसके उदाहरण आपको मैंने बताए हैं। तो जितना जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जितना आपने पढ़ा है उसको आप रीड करोगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिख के लर्न करोगे। इसी के साथ ही आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।